Hi Kanika. Hello everyone. Hi Rimpi. Hi Simran. Hi China. Hi everyone, I'm Shivani Kumar, hair and makeup artist. I'm based in Vasant Kunj, New Delhi. And today I'm going to show you how you can do base on dry skin. And not only base, you'll be learning about how to prepare your dry skin before makeup. So I think we should wait for more people to join in. So tell me, what do you want to see कि मैं मेकअप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से करके दिखाऊं या फिर हाई एंड प्रोडक्ट्स. प्लीज शेयर योर फीडबैक. What do you want to see? Affordable products or expensive products? I think we should start now. So I've done my basic eye makeup. Now I'm going to start with cleansing. Now I'm using La Roche-Posay cleanser, micellar water. And you can use any micellar water like from Garnier, Bioderma. And there are many products available in market and you can invest in according to your pocket. After cleaning, we do whatever we do, we always start with cleaning, toning and moisturizing. So now I'm doing this. I'm using Mont Vibiano hydrating facial mist. Why we use this facial mist? To hydrate our skin, because we have to maintain our pH balance. You should always use hydrating toner because it contains glycerin and hyaluronic acid, and it will automatically, when you apply this product, it will automatically increase your hydration hours. Like अगर आप मेकअप कर रहे हो, you need to prepare your skin very well, तभी आपका मेकअप अच्छा लगेगा. Dewy finish तभी आएगी जब अच्छे से स्किन प्रेप हुई होगी. अगर अच्छे से आप उसको प्रेपिंग नहीं करेंगे स्किन को, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा. चाहे आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स लगा लो, लोग कहते हैं मैं ये ब्रांड की फाउंडेशन यूज़ करती हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज स्किन प्रेपिंग आप लोग अच्छे से नहीं करते हैं. तो वेन एवर यू डू मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब स्किन प्रेपिंग अच्छे से हुई होगी. तो आफ्टर अप्लाइंग दिस हाइड्रेटिंग टोनर, आई एम अप्लाइंग Charlotte Tilbury मैजिक क्रीम. And whenever you do makeup or apply moisturizer before that, never forget to apply it on your neck.
If you have any questions, you can ask me related to dry skin or dry skin problem. Hi Mansi. Now I've done my moisture. Now after doing moisturizer, I'm using under eye cream. You should always use under eye cream because when you do makeup, hydration is the key to get good result. Like if you want to achieve dewy base, we moisturize our skin so that we achieve dewy skin. And why we are using this under eye cream? Because it not only it hydrates your under eye area, but it addresses the problem like dark circles, puffiness, fine lines and wrinkle. See the difference. And I'm using Bobbi Brown's under eye cream. Hi Tanusha. After doing this step, I'm using primer, professional primer, Benefit ka professional primer, and you can use any primer like Color Bar and MAC, Bobbi Brown. अगर विंटर में आपको ड्राई स्किन प्रॉब्लम होती है तो यू नीड टू चेंज योर मॉइस्चराइज़र, बिकॉज ड्राई स्किन के लिए काफ़ी सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट समटाइम्स वी नीड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन. फॉर दैट यू नीड मॉइस्चराइज़र विच इज़ फॉर वेरी वेरी ड्राई स्किन. सो इफ़ यू चेंज योर मॉइस्चराइज़र दैट विल वर्क फॉर यू. You can ask me any question if you have any question. And अभी तक हमने जितने steps किए like cleaning, toning, moisturizing, then primer, तो आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में भी. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही लेने तो रिजल्ट अच्छा आता है. मार्केट में ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं. Like I have mix of drugstore cosmetics and expensive products in my kit, and I use both. So like for hydrating toner I was talking, hydrating toner आप Kiehl's का ले सकते हो, CeraVe का ले सकते हो, ELF का ले सकते हो, Ordinary का ले सकते हो. And same with moisturizer, Cetaphil, Biotique का Morning Nectar is very good, वो यूज़ कर सकते हो. बाकी अगर आप एक्सपेंसिव लेना चाहते हैं देन यू कैन इन्वेस्ट इन मैक, बॉबी ब्राउन, शार्लेट टिलबरी. एंड प्राइमर्स का भी ऐसे ही है, लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन कलर बार और स्मैश बॉक्स और प्रोफेशनल, बेनिफिट का प्रोफेशनल. एंड आई हैव यूज्ड अभी बेनिफिट का प्रोफेशनल. अदरवाइज आई लाइक कलर बार का प्राइमर, चीप एंड बेस्ट. वो आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है और आपको बिल्कुल ब्लर्ड आउट टेक्सचर भी प्रेप कर देता है आपकी स्किन को बिफोर मेकअप.
बिकॉज जब हमें मेकअप करना होता है, जितनी स्मूथ होती है स्किन उतना ही अच्छा लगता है मेकअप. Now I'm starting doing base. I'm using MAC का medium palette. I'm not using any corrector because I don't think कि मुझे ज़रूरत है, तो I'm directly using warm shade of concealer. क्योंकि अगर आप करेक्टर भी लगाते हो, कंसीलर भी लगाते हो, तो वही लेयर्स बिल्डअप कर रहे हो आप, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. और आजकल किसी को केकी मेकअप अच्छा भी नहीं लगता है. मैं कंसीलर डैबिंग मोशन में लगा रही हूँ. मैं अपना ये पार्ट कवर नहीं करती हूँ बिकॉज एनीवेज हमें यहाँ पे कंटूरिंग करनी होती है, तब भी हम शेडो क्रिएट करते हैं. तो ये मेरा नेचुरल शेडो है, तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको कवर ही ना करूँ. इवन माउथ एरिया के पास हल्का सा पिगमेंटेशन है, इसको भी मैं अवॉइड करती हूँ. फाउंडेशन करने से ये मेरा कवर हो जाता है. तो वही है, अगर आपने लेयर्स अवॉइड करनी है तो यूज राइट प्रोडक्ट्स. और ड्राई स्किन के लिए आप जो भी फाउंडेशन यूज करते हैं वो होनी चाहिए जो शेयर कवरेज हो और इल्यूमिनेटिंग हो, लाइक ल्यूमिनस लिखा होता है फाउंडेशंस पर, तो यू कैन पिक अकॉर्डिंग टू दैट. ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक्स में LA गर्ल इज सो गुड, मेबलिन इज सो गुड. और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर नार्स, Chanel, Dior, MAC, Bobbi Brown, Makeup Forever. There are so many. अभी आई एम यूजिंग MAC फाउंडेशन. मैंने इतना सा प्रोडक्ट लिया है. I'm applying my foundation in dabbing motion. I'm not dragging it. I'm just pushing my product into my skin. And I'm not covering my under eye area. Here I'm dragging it little bit to spread the product, and again I'm using dabbing motion.
आई एम यूजिंग वेरी लेस प्रोडक्ट ताकि मेरा मेकअप केक ही ना लगे. जहाँ नीड लगता है यू कैन टेक मोर प्रोडक्ट. अभी भी देखो मेरा कितना सारा फाउंडेशन बचा है. Now I'm using leftover product on the neck. यहाँ पर आराम से ड्रैग कर कर लगा सकते हो. अब हम कवर करेंगे अपना अंडर आई एरिया. उसके लिए आई एम यूजिंग मिलानी का कंसीलर. ओके, सनलाइट से बचने के लिए तो आप सनस्क्रीन ही लगा सकते हैं और आपको थोड़ी थोड़ी देर में लगाना होता है. तो ऑलवेज कीप सनस्क्रीन इन योर बैग and you can reapply and you can use any sunscreen which is SPF 30 to 50. Like I use Forest Essentials का. Sorry, not this one. कंसीलर लगाकर अगर आप थोड़ी देर उसको छोड़ देते हो और उसके बाद इसको ब्लेंड करते हो उससे अच्छी कवरेज आती है. Now I'm done with my foundation. I'm using loose powder for setting my base. I'm using Laura Mercier powder, translucent powder. और ड्राई स्किन के लिए एक मैं सजेस्ट करूँगी, सिर्फ अपना अंडर आई एरिया सेट कीजिए, बाकी आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं. बिकॉज नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी होती है, आप नहीं भी सेट करोगे तो चलेगा, बट डोंट फॉरगेट टू सेट योर अंडर आई बेस.
सा मैक का स्टूडियो इफेक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर, आई एम नॉट डूइंग इट हेयर, बिकॉज हमें लेयर्स नहीं करनी है। एंड कभी आपका होता है कि नेक का कलर डिफरेंट लग रहा है और फेस का कलर डिफरेंट लग रहा है, तो यू कैन यूज सेम कलर ऑफ पाउडर ऑन फेस एरिया एंड नेक एरिया। हाय शोभिता। अब मैंने अपना फाउंडेशन भी सेट कर लिया है। नाउ आई एम डूइंग कॉन्टोरिंग पार्ट एंड आई एम यूजिंग टू फेस का डार्क चॉकलेट शेड। अगेन आप चाहे कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर एनी प्रोडक्ट, ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेबलिन का एक पैलेट आता है जिसमें ब्लशर, हाइलाइटर, कंटूर होता है, बहुत अच्छा है। कंटूरिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आप शुरू करेंगे ईयर के जस्ट अबव, और जहाँ आपकी आई एंड होती है वहाँ तक आपने ये इस जगह जहाँ आपकी चीक बोन जस्ट एंड होती है उस एरिया में अप्लाई करना है और इसको अपनी हेयर लाइन में मर्ज कर देना ताकि लिफ्टेड लगे। सी और कॉन्टोरिंग जितनी सॉफ्ट होती है उतनी अच्छी लगती है। अब वो लाइन वाला कॉन्टोरिंग स्टाइल बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया है। पहले दो दो लाइन दिखती थी ना यहाँ पर एंड यहाँ पर अलग से, फोटोग्राफ्स में अलग से दिख जाती थी, तो ऐसा नहीं करना है। आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, मेकअप हमेशा अच्छा लगेगा। ऐसे मुझे मेरे नोज़ पर कंटूरिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं लग रही थी, बिकॉज जब मैंने हाइलाइटिंग की, बेस हाइलाइटिंग, उसी से ही नेचुरल कंटूर लग रहा था। राइट, हल्का सा करने से और अच्छा लगता है। आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Now I'm doing blusher and I love using matte colors.
अपना आप जो ब्लशर लगाते हैं इसका भी तरीका है, राउंड फेस पर अलग तरीके से लगता है, एंड इफ़ यू वांट चिजल लुक उसका अलग तरीका है। तो अगर चिजल लुक चाहिए तो डू इट दिस वे एंड लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट ऑन एप्पल ऑफ चीक्स। और अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए, वही नेचुरल रेड लुक होता है जो हमारे फेस का विंटर्स में जो दिखता है, वैसा लुक चाहिए तो यू कैन अप्लाई लाइक दिस एंड हल्का सा नोज पर, यहाँ पर। Yes, I do give personal makeup training and professional too. अगर किसी को लेना है तो you can contact me on my work page at Hair and Makeup by Shivani Kumar. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो you can ask. फील मुझे थोड़ा सा लोअर लैश लाइन करना चाहिए। मैंने अपने बेसिक आई मेकअप नताशा डेनोना ब्रॉन्ज पैलेट से किया है और मैं उसी में से कलर पिक कर रही हूँ फॉर माई लोअर लैश लाइन। हल्का सा कलर लगा रही हूँ मैं। Because I don't do too much of makeup near my eyes because I have some problem in my eyes. मैं इससे ज़्यादा नहीं करती कभी भी। तो आप लोग कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूज़ मल्टीपल कलर्स on your lower lash line. तो इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं लाइक फ्रॉम प्रेपिंग टू बेस कि क्या प्रोडक्ट कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो यू कैन आस्क मी। Now I'm doing my lipper. I'm using Too Faced making moves. Thank you, Akansha. सी मेकअप ऐसी चीज़ है विदाउट प्रैक्टिस कभी बैलेंस नहीं कर सकते आप। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। कि अगर आपका आई मेकअप सेम नहीं होता दोनों आईज पर तो प्रैक्टिस कीजिए और हो जाएगा।
इनिशियली किसी का भी नहीं होता, सबको टाइम लगता है। I'm topping my lipstick with NARS lipstick. बिकॉज मेरे लिप्स थोड़े ड्राई हैं और लिप्स के लिए भी ना यू शुड ऑलवेज prep your lips with good products. Like if you have chapped lips, so you can use Lucas Papaw ointment and थोड़ी देर रखिए, उसके बाद you can use baby toothbrush and scrub it off. और you can use Laneige का sleeping mask और Burt's Bees का lip balm, Bobbi Brown का lip tint और Palmer's का cocoa butter formula is very good. तो उसके लिए भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आई एम डन विद माई मेकअप। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क। और जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज री अप्लाई एनी प्रोडक्ट। मैंने हाईलाइटिंग नहीं की है तो आई एम डूइंग दैट ऑल्सो। आई एम यूजिंग डियोर का हाईलाइटर। I'm doing soft highlighting. I don't like too much of highlighter. Just मैंने अपने प्रोडक्ट को अपने चीक बोन्स पर लगाया और लेफ्ट ओवर से I'm doing it here. और जिसको हाइलाइटर पसंद है they can use as much as you want. No, it is not necessary to use only branded makeup. Branded क्या है, ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक्स भी ब्रांडेड ही होते हैं, बस ये है कि वो सस्ते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। और ये मिथ है कि अगर आप महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो ही रिजल्ट अच्छा आएगा। आप ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हो, राइट टेक्निक यूज़ करते हो, सही तरीके से उसको अप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। चाहे आप मेबलिन यूज़ कर रहे हो या मैक यूज़ कर रहे हो या शनेल यूज़ कर रहे हो, अगर आपको राइट टेक्निक पता है तो रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। फोन कंसल्टेशन, इसके बारे में मैं सोचूंगी। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। आई एम यूजिंग मैक का, ये मेरा न्यू बॉटल है, मैक का फिक्स प्लस। लगाते ही क्या डुई इफेक्ट आता है। Now I'm done with my makeup. If you have any questions, you can ask me. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई हैव टू एंड दिस सेशन बिकॉज आई एम डन विद माई मेकअप। You can ask me any question related to dry skin or even oily skin. If you have any question, please ask.
ओके शिवानी, फाउंडेशन चूज करने के लिए किसी भी स्टोर पर आप जाते हैं, चाहे ड्रग स्टोर, कॉस्मेटिक हो या सेफोरा, कहीं भी आप जाते हैं, ऑलवेज चेक ऑन योर जॉ लाइन और मैच कर कर देखिए. लाइक आई कैन शो यू हाउ टू टेस्ट योर फाउंडेशन. सी आई हैव दिस पैलेट. ये मेरी स्किन में बिल्कुल मर्ज हो गया ये कलर. इफ आई अप्लाई दिस, ये मर्ज नहीं होगा, काफी फेयर लग रहा है, तो ये मेरे फेस को वाइट कर देगा. तो जब भी आप कोई फाउंडेशन चूज करते हैं तो लाइट तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कुछ टाइम के बाद आपका फेस ग्रे दिखने लगता है, आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है और आप डार्क भी करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज कोई भी डार्क तो नहीं लगना चाहता. जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वही दिखेगा तो ही अच्छा दिखेगा. तो आपको हमेशा फाउंडेशन वो पिक करनी है जो आपकी स्किन में मर्ज हो जाए. ना वो लाइट होनी चाहिए ना वो डार्क होनी चाहिए, हमेशा स्किन कलर से मैचिंग फाउंडेशन लेना चाहिए. आईब्रोज के लिए जो आप पेंसिल पिक करते हैं, सी हम एशियंस का क्या है, हमारा हेयर कलर ब्लैक होता है तो हमारी आईब्रोज थोड़ी सी सॉफ्ट दिखनी चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए. तो आप ब्लैक ना पिक कर कर ब्राउन और ग्रे, आई कैन शो यू द कलर्स. लाइक यू कैन पिक these kind of shades, this ये mix match कर कर you can create shade and you can use. I mix this shade also with these grays और उसके बाद मैंने अप्लाई किया. और नेचुरल लगना चाहिए, ज़्यादा उसको स्टार्क मत करो, बिकॉज डार्क आप कुछ भी करते हो ना, कुछ नहीं अच्छा लगता. बिकॉज नाउ अ डेज सॉफ्ट मेकअप इज इन ट्रेंड, तो सब कुछ सॉफ्ट ही अच्छा लगता है. ब्राइड्स भी कैरी करती हैं सॉफ्ट आई मेकअप, सॉफ्ट लिप्स. हाउ कैन वी कंट्रोल स्वेट ऑन मेकअप? सी स्वेटिंग होना नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप स्लो डाउन कर सकते हो कुछ चीज़ें कर. लाइक आपका सेटिंग स्प्रे आता है अर्बन डीके का, वो यूज़ कर सकते हो. और प्राइमर लगाओ मेकअप करने से पहले, और बिफोर डूइंग मेकअप कोल्ड कंप्रेशन करो, तो उससे बेनिफिट होगा. बाकी स्वेटिंग होना इज़ नॉर्मल, उसको तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता. अगर आप मेकअप करने के बाद डांस कर रहे हो तो स्वेटिंग होगी, कोई उसको नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. हाय ज्योति दी. फोन कंसल्टेशन. थैंक यू सो मच उर्मिला. ज्योति दी, आप कभी भी मेकअप जब करते हैं उससे पहले प्राइमर यूज कीजिए, ताकि वो आपके ओपन पोर्स को ब्लर आउट कर दे. और ऐसा पिक मत करना जो आपकी स्किन को ड्राई बनाए, बिकॉज ऑयली स्किन के लिए अलग आते हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग आते हैं, सॉरी. और ड्राई स्किन के लिए आई विल सजेस्ट कि अगर इकोनॉमिकल ब्रांड पिक करना है तो गो फॉर कलर बार, दी बेस्ट प्राइमर. और पोर बेनिफिट का प्रोफेशनल इज़ वेरी गुड, वो भी यूज़ कर सकते हो. What do you provide? Makeup and whole days. I don't know. उर्मिला, अगर आपको आईलाइनर सूट नहीं करता है तो
you can use any shadow, eye shadow color. जैसे आप कह रहे हो कि मुझे डिफरेंट कलर ऑफ लाइनर्स पसंद आते हैं, तो कोई भी पेंसिल लिया, लगाया लाइनर की तरह और उसको स्मज आउट कर लो. लाइक यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ब्रश. ये तो बड़ा है, यू कैन यूज स्मॉलर साइज ऑफ दिस पेंसिल ब्रश और अ डोम ब्रश. वो लगाया एंड बैक एंड फोर्थ मोशन में उसको स्मज किया. देन टॉप अप इट विद पाउडर, मीन्स पाउडर शेडो, and you are good to go. So your skin is a combination skin. You have combination skin. ना ज़्यादा ड्राई है ना ऑयली है, नॉर्मल भी हो सकती है. और अगर पोर्स हैं तो कॉम्बिनेशन है. तो उसके लिए आप प्रोफेशनल में इन्वेस्ट कीजिए और आपको अच्छा लगेगा. अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया कि नेक्स्ट टाइम मैं कब आऊँगी, बट हाँ जल्दी ही. आई थिंक ये सेशन हमें यहीं एंड करना चाहिए, बिकॉज सबके क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं एंड और किसी के पास कोई क्वेश्चंस है नहीं. वुड यू रिकमेंड एनी SPF which works just like foundation? सी SPF बेस्ड फाउंडेशंस आती हैं, वो यूज़ कर लो. डार्क कलर, लाइट कलर यूज़ करना वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है. लोग ब्राइड्स आज की डेट में सब सॉफ्ट मेकअप कैरी करते हैं और वेडिंग ज़्यादातर शाम के समय ही होती है. तो आप अगर डार्क मेकअप के लिए सोच रहे हैं कि मुझे कब करना चाहिए, प्रेफरेबली नाइट फंक्शंस में, और सॉफ्ट कलर्स फॉर डे फंक्शंस. मैं अगर मुझसे पूछा जाए मेरा ओपिनियन कि क्या करो, तो आई लव यूजिंग मैट कलर्स इन अ डे टाइम. अभी बैंगलोर में तो मेरा कोई प्लान नहीं है, बट हाँ कुछ होता है तो आई विल डेफिनेटली गो. हाउस योर फीडबैक ऑन ऑलरेडी, वो तो मुझे पता चलेगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. मेरे ऑफलाइन सेशंस अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई वर्क पेज, दैट इज Hair and Makeup by Shivani Kumar, and I am based in Vasant Kunj, New Delhi. Okay, thank you so much everyone for joining in, and thank you so much already .in for having me here. Thank you so much.